understand that who are an entrepreneur. Be clear. वो point में किसी को doubt है कि कौन entrepreneurs कौन होते हैं? Clear है? Entrepreneurship क्या है? That is a process of establishing a new business. That is known as entrepreneurship. The process, यानी where you started, planning वगैरह किया आपने और finally आपने establish किया, ठीक है, business को. तो जितना भी process और steps हैं वो सब कुछ entrepreneurship में आएगा, ठीक है. उसके बाद we did some characteristics of the entrepreneurs, ठीक है, क्या qualities है, characteristics क्या क्या है. तो चलिए बताइए, what are the qualities of an entrepreneur? Confident. Value for achievement over money. Patience और perseverance. Better. चलिए, what are the characteristics? Confidence. Valuation of achievement over money. Characteristics में मैंने सारे यही करवाए होंगे लगभग. ठीक है, चलो बताओ. Motivator. और planner. Speaking ability. High level of energy. Future oriented. ठीक है, sit down. So I guess what are the characteristics and qualities are clear to all of you, right? So I gave the example of Shark Tank in the last class. Why? Because that is a live example in front of us, that how many people are become and successful entrepreneurs, right? But if we are talking about the ratio कि कितने successful होते हैं entrepreneurs, so that is very less in India. Around 6% पहले था success rate और अब वो 3% हो गया after COVID. Because in COVID period जितने भी businesses शुरू हुए थे, चाहे वो restaurant के business वगैरह हो, लगभग सब बंद हो चुका है ना? Because of the lack of sale, lack of profit, obviously. ठीक है. So in short, we understand the concept of an entrepreneur's qualities are clear. In today's class, we are going to understand that what is the difference between the intrapreneur and entrepreneur, manager and entrepreneur. ठीक है. So there is a term intrapreneur. So it's a INTRA, intrapreneur. कौन होते हैं? ध्यान से सुनिएगा कि entrepreneurs और entrepreneurs का जो काम है, that is kind of similar. They are innovators. They are basically creating new things. They are utilizing the technology. They are doing the research work for the products. ठीक है. They are engaged in the market research in short. ठीक है. So the work of these two, entrepreneur and entrepreneur, is very similar, but the only difference is that entrepreneurs are doing whatever that is for themselves only. अपने लिए, खुद के लिए करते हैं. ठीक है. Himself or herself. अपने लिए करेंगे. Like Nykaa की जो founder है फाल्गुनी नायर, when she started this company Nykaa, why she started that? Because she want to do something in the fashion industry, and that's why she started, right? But the entrepreneur जो होंगे, they are working under the organization. For example, there are multiple companies, Tata ले लीजिए, Infosys ले लीजिए, there are multiple companies. So the people who are engaged in the product designing, research work, doing something innovation, different. So the people who are in this area, they are known as entrepreneur. So entrepreneurs are independent people. They are establishing their business according to their own theme, own goal. There is nothing like कोई boss है और order दे रहा है कि ये करो, वो करो. There is nothing like that. He is not bounded in any organization or enterprise. वो कोई foundation नहीं है. वो business अपना खुद का start करने जा रहा है, right? Entrepreneur. But the entrepreneur जो होते हैं, they are working in the organization as a normal employee, but the work is similar like an entrepreneur. मतलब काम entrepreneur की तरह ही है. डेवलपमेंट करेंगे, इनोवेशन करेंगे, रिसर्च का काम करेंगे, नया कुछ करना, कुछ नया बेसिकली एड ऑन करना आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, ये सारा काम एंटरप्रेन्योर करेंगे, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइजेशन के विद इन करेंगे. जैसे मैं हूं, आई एम डूइंग जॉब इन दिस कॉलेज, सो आई एम एन एम्प्लॉय, right? Whatever I am doing, that will be according to the policies of the organization.
according to the notice, according to the orders, whatever is given from the higher management or authority, I am doing the things according to that, right? But if I am starting my own coaching center or tuition center, I will do work according to my own convenience. I will take classes according to my own time, right? I will do according to my own, मेरा जो खुद का पॉलिसी मैं अपने लिए खुद डेवलप करूंगी, है ना? लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स पॉलिसीज को मानना पड़ता है और उसी हिसाब से उनको अपने वहां पर डिजाइनिंग और डेवलपमेंट का काम करना पड़ता है, इनोवेशन का काम करना पड़ता है, ठीक है? सो वर्क और जो स्किल और एक्सपर्टीज की जो जरूरत होती है, दैट इज सिमिलर लाइक एंटरप्रेन्योर, बट एंटरप्रेन्योर इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी के लिए काम नहीं करते, किसी के अंडर में नहीं होते वो, पर एंटरप्रेन्योर दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज अ वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है? दोनों वर्ड को सिमिलर मत लेना, क्लास, ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास, दे बोथ आर डिफरेंट. एंटरप्रेन्योर इज स्टार्टेड विद ENT, राइट, एंड इंट्रा INT, ठीक है? इंट्रा RA, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? चलिए, ओके, ऑनलाइन क्लास, दिस पॉइंट इज क्लियर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप. Online class, Yes, ma'am. this point is clear. Offline class, this point is clear. Online class, everyone turn on your camera. Everyone turn on your camera. And see, I just want to tell you all कि अभी ऐसे भी कुछ दिन के लिए क्लास है आपकी ये ऑनलाइन वाला, उसके बाद अब 1 तारीख से सबको आना है, 1 अप्रैल से, है ना? सो जस्ट ट्राई कि सारे बच्चे जितने भी दिन क्लास कर रहे हो ऑनलाइन हो तो कैमरा ऑन करके बैठो. चलिए, अब सेकंड डिफरेंस क्या है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिस्क, अगर मैं सिर्फ रिस्क की बात करूं तो अगर मान लीजिए मैं अगर अपना ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करूं, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, आई एम नॉट डूइंग दैट, ठीक है? सो इफ आई एम स्टार्टिंग एनी ट्यूशन सेंटर और इफ आई एम स्टार्टिंग एनी ऑफ द बिजनेस, the first thing which I need, that is a capital. Obviously अब ट्यूशन सेंटर है तो एक लोकेशन चूज करना पड़ेगा, अब वहां पर बोर्ड होर्डिंग्स वगैरह तो करवाना पड़ेगा ताकि एडवर्टीजमेंट हो. उसके अलावा फिर मुझे काउंसलर भी रखना पड़ेगा ताकि स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन ले कोचिंग सेंटर में, और उसके अलावा फिर मुझे बेंचेस एंड ऑल, ये फर्नीचर और फिक्सचर्स भी चाहिए होंगे, ब्लैक बोर्ड चाहिए होंगे, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिक्वायरमेंट होगा. सो फॉर दीज थिंग्स आई नीड मनी, राइट? So either if I'm starting it in a very small scale, अगर मैं बहुत छोटा सा कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर रही हूँ तो maybe it required less money, but if I'm starting it in the large scale, like what mentors do, what Akash Institute did, right? So ये जितने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इन्होंने बहुत बड़े स्केल में शुरुआत की और बहुत जल्दी एक्सपैंड भी हो गई है ना? So when I started any of the business in a very small scale, for that capital which is required, that is very लो, बहुत कम की जरूरत है, लेकिन पैसे की जरूरत तो है ना. अभी तो अगर कोई वेंडर भी बनता है तो उसको भी 1 लाख रुपए चाहिए एटलीस्ट, है ना? 50,000 to 1 lakh. So if I am starting a coaching center, at least I need 2 to 3 lakh rupees. सही बात है ना? और बायजूस की मैं तुम लोग को कहानी बताऊं तो बायजूस जो है वो एक टेरेस से शुरू हुआ था. Did even you imagine that कि एक टेरेस से उनकी कहानी शुरू हुई थी और आज आप देखो कि कितना ज्यादा किस पोजीशन पे है. So मुझे 2-3 लाख की जरूरत है, उसके लिए ना ही मुझे कुछ भी मिलेगा तो वो लोन मिलेगा, या मेरी फैमिली मुझे पैसे देगी, या मेरे जो नोन होंगे वो मुझे पैसे देंगे, है ना? यानी इन शॉर्ट मुझे खुद से पैसे अरेंज करने की जरूरत है इन द केस इफ आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, राइट? बट इन द केस ऑफ द एंटरप्रेन्योर, द कॉस्ट इज अप टू द कंपनी. They are incurring the cost for the development, research and innovation. You don't need to pay a single money from your pocket. अगर आपको कोई डिजाइनिंग की जरूरत है, आपको रॉ मटेरियल की जरूरत है, या आपको किसी भी चीज की जरूरत है, कंपनी आपको खरीद करके प्रोवाइड करेगी. कंपनी आपको वो सारी चीजें, वो सारे रिक्वायरमेंट्स देगी जो रिसर्च के लिए रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, क्वालिटी टेस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड है, और एनी इनोवेशन के लिए रिक्वायर्ड है. आ रही बात समझ में? एंड वी ऑल नोस कि इनोवेशन इज नॉट वर्क ऑल द टाइम. Sometimes the innovation becomes destruction as well. तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई भी फेलियर होता है आपके इनोवेशन के साथ, तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो ऐसे केस में आपका कोई बड़ा लॉस नहीं है क्योंकि कंपनी बेयर करेगी वो सारी चीजें. बट इन द केस ऑफ द एंटरप्रेन्योर के सिचुएशन में बिल्कुल अलग हो जाएगा क्योंकि पैसे आपके लगे हैं.
कोचिंग अगर इंस्टीट्यूट मेरा नहीं चलेगा तो दैट लॉस इज फॉर मी, ठीक, वो सिर्फ मेरे लिए वो लॉस है, बाकी कोई भी किसी के लिए भी वो लॉस नहीं है ना। मुझे एक बोल सकते हैं जो अमाउंट जो मैंने लगाया एज अ कैपिटल वो रिस्क में रहेगा, अगर मुझे रिटर्न नहीं मिला तो ऑब्वियसली बाद में चल के वो मेरे लिए लॉस हो जाएगा। बट एंटरप्रेन्योर के साथ ऐसा सिचुएशन नहीं है। आ रही बात समझ में? द मनी और जो रिस्क है दैट इज वेरी लो इन द केस ऑफ द एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं इनकम की। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम, सैलरी, सो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो तो सबको पता है कि द सैलरी और द अमाउंट इज नॉट रेगुलर और इट इज नॉट सिमिलर ऑल द टाइम। आ रही बात समझ में? ये समझ में आया वर्ड? कि यानी कि जैसे मैंने अभी कोचिंग सेंटर ओपन किया, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इट, एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि फर्स्ट मंथ में मेरे पास एक साथ 20-25 स्टूडेंट्स आ जाए, हो सकता है 2 बच्चे रहे मेरे पास, है ना। अब वो 2 बच्चों की जो फीस आई वो मान लो 20,000 रुपीज आई, तो दैट इज 20 में अगर मान लो 10,000 रुपीज आप अलग हटा दो फॉर द expense and all those things, so the first month income is only 10K, next month हो सकता है 2-3 और बच्चे बढ़ गए, so according to that my amount और income is increasing either decreasing, वो 1-2 बच्चे में से एक बच्चे ही हो सकता है आगे चल के बचे, वो भी एक बच्चा चला जाए, possibility is there, so loss भी हो सकता है आगे चल के सैलरी में, वो जो इनकम में, और आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। But in the case, if we are talking about the entrepreneur, there is nothing like that. The fixed amount will be given to you every month. अब जैसे कि आपकी सैलरी अगर मान लीजिए उस कंपनी में 2 लाख रुपीस पर मंथ है, so that amount you will get for the long time. Either you will get the appraisal or any extra bonus or incentive, that is a different thing. But the salary amount will be fixed. आ गई बात समझ में? लेकिन वो जो सैलरी है हो सकता है आगे चल के मेरा जो ट्यूशन है उससे मुझे 5 लाख रुपए पर महीने आ रहा है, उसको 2 लाख मिल रहा है, so there is a possibility of high profit as well. Don't you think that the Mamaearth is the company which has started selling the product, जो जिन्होंने प्रोडक्ट स्टार्ट किया सेल करना from 2016, है ना, they started selling the natural product without any sulfate or any chemical items, and now the company is in billion में वो कंपनी का वैल्यूएशन है। So how it was started? Because of the better promotion, better management system, in short, right? But it is not required that every entrepreneur will become successful. So there is a high risk in the case of the profit as well. But in the case of the entrepreneur, you have to work under the organization. You have to follow the policies, rules, orders, whatever there in the organization. You have to live in that environment, and after that, you will get the fixed amount, ठीक है। either the company have a lot of profit, अगर कंपनी को, जिस कंपनी में आप एज ए एंटरप्रेन्योर काम भी कर रहे हो सकता है उसको बहुत ह्यूज प्रॉफिट हो, तो जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट से आपको कुछ मिलेगा ही, आपकी जो सैलरी फिक्स है वही चलती रहेगी। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर हो और कुछ प्रॉफिट हो गया बड़ा, तो सारे पैसे किसके होंगे? एंटरप्रेन्योर के। यहां तक समझ में आया? बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया? क्लियर है? और एक तो वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाला सिचुएशन तो क्लियर हो ही गया होगा, है ना। अभी वो मैं सारी चीजें लिखवाऊंगी जितनी बता रही हूँ चीजें, बस एक आउटलाइन बता दिया कि क्या मतलब क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं मैनेजर और एंटरप्रेन्योर की, ठीक है। तो जो मैनेजर होते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट मी टेल यू कि क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि मैनेजर और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो जो मैनेजर होते हैं, their work is to execute the plan whatever is made by the top level in the organization. Who are under the top level? For manager आपको थोड़ा मैनेजमेंट समझना पड़ेगा, है ना। मैनेजर के लिए मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। सो मैनेजमेंट तो आप लोगों को पता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग द गोल्स और अचीविंग इट इन अ एफिशिएंट मैनर, एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस और इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक है। तो मैनेजमेंट का जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है मैनेजर, और मैनेजर क्या करता है, वो सारी पॉलिसीज जो कि टॉप लेवल के द्वारा बनाए गए, टॉप लेवल में आपके डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, या फिर आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, सीएफ हो गए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गए, सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, ये सारे आपके टॉप लेवल पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मिडिल लेवल, जहां पर मैनेजर होते हैं।
अब ये मैनेजर क्या करते हैं, तो ये जो भी पॉलिसीज बनाई गई है कंपनी के लिए, नाउ देयर वर्क इज टू इम्प्लीमेंट इट इन द होल ऑर्गेनाइजेशन। और अब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसको लागू करना है कि हर एक लोग उस पॉलिसीज और ऑर्डर को फॉलो करना शुरू करें। ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और उसके बाद आता है लोअर लेवल। लोअर लेवल में आपके दो लोग आते हैं, सुपरवाइजर एंड फोरमैन। पढ़ा है आप लोगों ने, थोड़ा बहुत याद है मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग एंड वो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट याद है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो ये तो पढ़ा होगा बीएसटी में, है ना। सो मैनेजर का वर्क क्या है, बेसिकली वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है, राइट। एंटरप्रेन्योर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करता है। मैनेजर क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में काम करता है ना। मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ, एक और चीज मैं बताऊंगी कि मैनेजर जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शनल एरियाज के लिए कई बार अलग अलग भी होते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी कि मार्केटिंग में है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उसके लिए मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, रिसर्च है तो रिसर्च के लिए मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर। ठीक है, सो फंक्शनल भी हो सकते हैं मैनेजर्स आपके, और जनरल मैनेजर भी हो सकते हैं जो सारे के सारे डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जिसके लिए सब अकाउंटेबल। ठीक है, सो मैनेजर का जो काम होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क, implementation of whatever policies and order is given by the top level. So basically they are linked between the lower level and top level. एक लिंक की तरह वो काम करते हैं, बीच में होते हैं। अगर लोअर लेवल को कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है या कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो they are going to ask with the manager, and if the top level have anything to speak about, then he or she is going to tell the manager about it. So basically they are the link between the top and the lower level basically management. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैनेजर का काम क्या होता है, तो क्लियर हो गया होगा। सो दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर द स्किल्ड पीपल। जो मैनेजर्स होते हैं दे आर स्किल्ड। स्किल का मतलब क्या है कि इफ यू आर गेटिंग द पोजीशन ऑफ मैनेजर, इट मींस यू हैव एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस्ड हो। सेकेंड थिंग, आपके पास नॉलेज है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, और इसके लिए मैनेजर के लिए तो कई बार एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत होती है इफ यू विल गेट द पोजीशन ऑफ मैनेजर, राइट। बट इन द केस ऑफ द एंटरप्रेन्योर ऐसा एजुकेशन की कोई एलिजिबिलिटी इसमें नहीं है। ठीक है, कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने एक भी दो भी क्लास नहीं पढ़ा है प्रॉपरली और वो आज एंटरप्रेन्योर्स हैं। लेकिन अभी तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स ज्यादातर आईआईटी और आईएमटी नजर आएंगे आपको। सो नाउ जो आपका ये तो भी ट्रेंड है, एंटरप्रेन्योरशिप तो अभी ट्रेंड में चल रहा है। So the educated people and the non-educated people, they both can become an entrepreneur. सही बात है, समझ में आया। बस yes, you have to think about the suitability. If I am starting any tuition center or any of these educational institute, so for that I can't be uneducated or illiterate. So suitability is required. That is the important thing. But there is nothing like that कि something is written over कि नहीं ये educated नहीं तो entrepreneur नहीं बन सकता है। So education is nothing कि हाँ eligibility होनी चाहिए entrepreneur के लिए, लेकिन जो manager होंगे they are skilled, knowledgeable, informed as well as expertise in that area. ठीक है, और जब उनकी हायरिंग भी होगी मैनेजर की तो सुटेबिलिटी को चेक करके होगी। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा स्टाफिंग में, राइट पर्सन एट राइट वर्क एट राइट टाइम, है ना। सो व्हाई दिस टर्म्स आर यूज्ड, बिकॉज मैनेजर अगर मार्केट का कोई पर्सन, मार्केटिंग में कोई पर्सन जो है उसकी एजुकेशन है ना, और उस पर्सन ने जितना भी उसका एक्सपीरियंस रहा है काम का सब मार्केटिंग में रहा है, सो द कंपनी इज नॉट गोइंग टू हायर दैट पर्सन इन फाइनेंस। ट्रू। सो इस तरीके से उस पर्सन की हायरिंग होगी। बट फॉर एन एंटरप्रेन्योर नथिंग लाइक दैट हैपन बिकॉज ही और शी इज नॉट वर्किंग अंडर द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। एक टर्म है, इट इज लिटिल बिट ब्लंट, बट मैनेजर्स आर सर्वेंट एंड द एंटरप्रेन्योर्स आर द ओनर्स। सही बात है, सही बात है ना। आई ऑलरेडी सेड दैट इट इज अ वेरी ब्लंट टू स्पीक लाइक दैट। द पर्सन इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली आप लोगों ने सुना गवर्नमेंट के लिए भी यही यूज होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना। सो दैट इज द फैक्ट।
चलिए, आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. सबसे पहला लिखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, एंटरप्रेन्योर का डिफरेंस और मैनेजर और एंटरप्रेन्योर का डिफरेंस. ये एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है एग्जाम में, इसीलिए इसको दोनों को अच्छे से लिख लो. इसीलिए इसको पहले समझाया फिर लिखवा रही हूँ. चलिए, एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा, एवरी स्टूडेंट. एंड इफ योर कैमरा अगर किसी का भी टर्न ऑफ हुआ, मैं क्लास से बाहर कर दूंगी. और अगर डर नहीं लग रहा तो लगने लगेगा. अब क्या हो गया? एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग नहीं आ रही, लिखो ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योर्स के बारे में लिखवा रही है ना, तो एंटरप्रेन्योर लिखो बस. और उधर कर दो एंट्री की जगह ENTRE की जगह INTRE कर दो. उधर कर लिया? देखिए, फर्स्ट कंपैरिजन का फर्स्ट बेसिस लिखिए. फर्स्ट बेसिस डेफिनेशन के बेसिस पर इस तरीके से बना लेना सारे बच्चे चार्ट. कंपैरिजन, एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर. यहां पर कंपैरिजन लिखो. पहला लिखिए डेफिनेशन. इट डिस्क्राइब्स एंटरप्रेन्योर में लिखना. इट डिस्क्राइब्स अ पर्सन who establishes his own company and shoulders the risk, मतलब कंधे पर रिस्क भी उठाते हैं, and shoulders the risk and rewards involved in it. ठीक है? So meaning is already clear that they establish their own business, risk लेते हैं और reward जो भी होगा वो भी वो खुद उसको enjoy करते हैं, in short, right? चलिए, next one is entrepreneur लिखिए. It refers to a person who works in a company. It refers to a person who works in a company and fulfilling the responsibilities of innovation in products operations and services. So these are entrepreneur, like they are basically working in the organization and they are fulfilling the responsibility, whatever is suggested or whatever is given by the people or management in the organization, and they are basically doing the innovation in the products, in the services and the operations, right? So we can take the example of the product में हम example ले सकते हैं. जैसे अभी Domino's का आप लोगों ने सुना होगा, burger pizza is there, right? So someone worked over it, तभी उन्होंने ये प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया. सही बात है. सेकेंड, आपका जो हर साल एप्पल का न्यू मॉडल आता है, कोई ना कोई उस पे इनोवेशन का काम करता है. सही बात है. लेट्स टॉक अबाउट द सर्विसेज. लाइक डोमिनोज में विद इन पहले 30 मिनट्स था ना, अब उसको 20 मिनट्स पर कर दिया गया है कि दे आर गोइंग टू डिलीवर पिज्जा ओनली एट विद इन 20 मिनट्स, राइट? सो समवन इज सजेस्टिंग दैट those things which is making Domino's distinct from the other pizza company. सही बात है. So innovations or whatever new thing which is going to be done in the organizations, that is done by the entrepreneur. So it can be for the goods, it can be for the services, and it can be for the internal operations in the organization. ठीक है? आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? चलिए, next one is objective.
ऑब्जेक्टिव। अच्छा, क्या लगता है कि एंटरप्रेन्योर का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? somehow they are basically involved in the socio economic value को बेटर करना, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करना। अब भाई एंटरप्रेन्योर बन गए और डिस्ट्रक्शन कर दिया तो वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते हैं। someone who is contributing in the GDP of the country, not company, it's country, so they are basically entrepreneurs, ठीक है, जो सोशियो इकोनॉमिक, जिनका कंट्रीब्यूशन हो इकोनॉमिकली कुछ। आ रही बात समझ में? तो यही लिखिए। सो आप लोगों को याद होगा सोशियो इकोनॉमिक वैल्यू दे आर क्रिएटिंग, ठीक है, तो लिखिए इसमें टू इंट्रोड्यूस समथिंग, एंटरप्रेन्योर में लिखिएगा to introduce something in the market, to introduce something in the market, ठीक है, that is new and that is new and that is new and of socio-economic value, that is new and of socio-economic value। अब जितना भी इनोवेशन हो रहा है, टेस्ला हो गया, ई रिक्शा हो गया, ये सारा का सारा इनोवेशन तो कंट्री में कंट्रीब्यूट ही कर रहा है ना, इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। एक जो है आपको पेट्रोल का प्राइस से कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेटर होगा बिकॉज यू आर गोइंग टू रन अ इलेक्ट्रिक कार, ट्रू। Second one is like e-rickshaw, like if you have to go to those places which is very far from the main road, then you can take e-rickshaw. So these innovations are done by any of the, if entrepreneur basically started doing that, so definitely it is contributing to the economy in our country, ठीक है। तो this is the first one। Second में आपका entrepreneur का main objective क्या होता है, क्यों वो entrepreneur बनते हैं, what is the reason, तो लिखिए इसमें। अब यहां आप एक कंट्री के कॉन्सेप्ट में सोच रहे हो जब आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने मामा अर्थ का एग्जांपल लिया था, सो व्हेन द वो गजल अलग, व्हेन शी स्टार्टेड दैट कंपनी, what was her perception, that she want to provide those product to the people, Indian people who are very much fed up from the chemical cosmetics, true, and because she is basically अपने बेबी के लिए she started basically started those product, उन्होंने तब बनाया था because when she understand that each and every product have some chemicals, either that is for the children, that is for the infant, ठीक है, so that's why she started that, and now everyone is basically appraising her, and even she got a certification भी मिला है उनको because there is no chemical in those product, right? So in short, that contribution, that development or that launching of new product basically affect the whole country, true. But if we are talking about the entrepreneur, their limitation is still only for the company, सिर्फ कंपनी के लिए वो सोचेंगे, because if I am working in Simage, I am going to think about Simage only, right? So the same situation is with the entrepreneur, they are basically limit themselves to the company only, whatever they are going to make, जो भी चीजें वो बनाएंगे, जो भी इनोवेशन करेंगे, वो कंपनी के डेवलपमेंट के लिए करेंगे। किसके डेवलपमेंट के लिए करेंगे? कंपनी के डेवलपमेंट के लिए करेंगे, कंपनी को कंपनी की ग्रोथ के लिए करेंगे, कंपनी प्रॉफिट अर्न करे ज्यादा टाइम तक, कंपनी के पास नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज हो, ये सारा उनका ऑब्जेक्टिव होगा एंटरप्रेन्योर का, ठीक है। तो लिखिए इसमें to improve the performance of the company or the product, ठीक है, to improve the performance and market sustainability of an established enterprise. Now we can take the example of Hindustan Unilever, ठीक है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, कोई बताएगा मुझे? ज्यादातर कौन से प्रोडक्ट हैं जिसके लिए एक वर्ड यूज होता है? FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वो बनाते हैं, राइट, जो हमारे डे टू डे के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो वो अगर कोई नया सोप बनाता है, ठीक है, विथ न्यू इंग्रेडिएंट्स एंड विद द न्यू फीचर, सो दैट कैन बी डन बाय द एंटरप्रेन्योर,
राइट? अगर वो सेल इंक्रीज होगा, सोप का डिमांड बढ़ेगा, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा सिर्फ कंपनी को हो रहा है। हाँ, कंज्यूमर्स को भी होता है बेनिफिट, तभी वो खरीद रहे हैं, बट इन शॉर्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्रेन्योर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी, राइट? लेकिन एंटरप्रेन्योर अगर कुछ नया, कुछ भी सोप बना रहा है, एक नई कंपनी स्टैब्लिश हुई और वो सोप जो बना रहा है मेडिसिन से रिलेटेड या कुछ भी बना रहा है, व्हिच इज वेरी मच इफेक्टिव फॉर द पीपल, बट हियर दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू लिमिट देमसेल्फ विद अ कंपनी ओनली, दे आर गोइंग टू गिव द बेनिफिट टू ईच एंड एवरी पीपल, ठीक है? उनका ऑब्जेक्टिव होगा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना। सो एंटरप्रेन्योर विल बी डू वर्क फॉर द कंपनी और एस्टैब्लिश्ड कंपनी, राइट? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, स्टेटस। स्टेटस क्या होगा? ऑनलाइन क्लास सबको पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चे? समझ में आ रहा है? आज क्लास में इतने कम। सो नेक्स्ट वन इज स्टेटस। स्टेटस, अच्छा स्टेटस तो ऐसे ही पता है, एंटरप्रेन्योर्स कौन होंगे? फाउंडर होंगे कंपनी के, और दूसरे कौन होंगे? एम्प्लॉय होंगे। बस लिखिए फाउंडर और एम्प्लॉय, फाउंडर एम्प्लॉय। नेक्स्ट लिखिए नेचर ऑफ एंटरप्राइज। नेचर ऑफ एंटरप्राइज, नेचर ऑफ एंटरप्राइज। अच्छा, जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, ज्यादातर वो एंटरप्रेन्योर्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनका स्टार्टअप होता है कुछ साल तक, जब वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के फेज में होते हैं तब तक वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। वंस दे विल डेवलप्ड, जब उनका बिजनेस पूरा प्रॉपर्ली स्टैब्लिश हो गया, चल गया, तो कई लोग उनको एज अ बिजनेस पर्सन देखते हैं। सही बात है? तो जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनका ये जो बिजनेस का नेचर होगा वो रिसेंटली स्टैब्लिश्ड होगा, यानी भी हाल फिलहाल में जो स्टैब्लिश हुआ है। और वो जो जिस कंपनी में काम करेंगे एंटरप्रेन्योर, वो क्या होगा? आपका पहले का एस्टैब्लिश्ड होगा। तो एक में लिखिए नेचर ऑफ एंटरप्राइज में, एंटरप्रेन्योर्स में लिखिए रिसेंटली स्टैब्लिश। रिसेंट मतलब हाल फिलहाल में, राइट? मेघा, व्हाट हैपेंड? मेघा सिन्हा, एनी डाउट? नो मैम। ओके। नेचर ऑफ एंटरप्राइज में लिखिए रिसेंटली स्टैब्लिश इन एंटरप्रेन्योर्स। इन एंटरप्रेन्योर्स राइट वेल एस्टैब्लिश्ड और स्टेबल। वेल एस्टैब्लिश्ड और स्टेबल। तो ये बात भी तो सही है ना कि जो कंपनी अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं होगी वो एंटरप्रेन्योर्स को हायर कहां से कर पाएगी? छोटी जो कंपनी होती है, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, कई बार तो अपना जो बिजनेस शुरू करते हैं तो उनके साथ एक या दो लोग होते हैं हार्डली, है ना? और बहुत सारे लोग तो आज भी स्टार्टअप्स कंपनी में जॉब नहीं करना चाहते, पता है ये चीज? Why? Because there is a risk, right? So, but still, some of the edutech companies, they started giving a very high salary to their teachers. चलिए, तो नेचर ऑफ एंटरप्राइज में लिखिए रिसेंटली स्टैब्लिश्ड, और एक में लिखिए वेल एस्टैब्लिश्ड और स्टेबल। नेक्स्ट में लिखिए सोर्स ऑफ कैपिटल। सोर्स ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ कैपिटल। तो एंटरप्रेन्योर्स तो खुद से लाएगा ना सोर्स, उसका कैपिटल का तो खुद से होगा। एक्वायर्ड बाय मतलब by the entrepreneur himself, तो entrepreneur himself खुद से लाएगा। सेकंड में लिखिए provided by the company, provided by the company, provided by the company। किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड एंटरप्रेन्योर। Difference between manager and entrepreneur. Difference between manager and entrepreneur. समझ में आ गया? ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स वगैरह भी हैं, लेकिन ठीक है, काफी है, इससे ज्यादा की जरूरत। एंटरप्रेन्योर में लिखो और मैनेजर में लिखो। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग को समझ आ रहा है ना सारे पॉइंट्स? ऊपर से नहीं जा रहा है ना? ठीक है ना? क्योंकि why I am asking this because you already clear to everyone, I guess, right? So entrepreneurs are the innovators and they are bearing risk and all. So I don't need to think. I don't think you just need to write. मैनेजर क्या करता है? तो लिखिए मैनेजर वर्क्स फॉर सैलरी। एंटरप्रेन्योर किस चीज के लिए काम करता है? फॉर प्रॉफिट। वेरी गुड।
ही इज वर्किंग फॉर द सैलरी, ही इज वर्किंग फॉर द प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि प्रॉफिट उनका मेन ऑब्जेक्टिव हो, कई बार उनका सोशल भी एक रिकॉग्निशन भी उनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। सो इसका सैलरी होता है, इसके पास क्या होता है, प्रॉफिट होता है। डेफिनेशन तो आई थिंक क्लियर ही है कि मैनेजर क्या करता है, ही और शी इज बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग द रूल्स एंड पॉलिसीज whatever is designed by the top level or whatever is basically guided by the top level. So they are implementing those things. Implement करने का मतलब होता है लागू करना हिंदी में, ठीक है। So ये मैनेजर करता है और एंटरप्रेन्योर्स क्या करता है। तो मैनेजर का डेफिनेशन क्या है, मीनिंग लिख लो। नहीं मतलब मैनेजर जो होते हैं वो बेसिकली इंटरपर्सनल स्किल्ड पीपल होते हैं who are basically working for managing the organization and implementing the policies whatever is designed by the top level management, ठीक है। तो अब ये मीनिंग समझ आ गया ना, इंटरपर्सनल स्किल्ड पीपल, ठीक है, एजुकेटेड नॉलेजेबल पीपल। एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है एजुकेशन का, याद रखिएगा। तो ये लिखते चले जाओ थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स। मैनेजर सैलरी के लिए काम करता है, वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। मैनेजर इंटरपर्सनल स्किल्ड, और एक आपका बोल सकते हैं कि वो इंप्लीमेंट करता है सारे के सारे जो भी पॉलिसीज बन रहे हैं पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, क्लियर। और ये क्या करता है, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ही इज ऑल्सो वर्किंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर, मतलब वर्किंग लाइक एज अ मैनेजर। कई बार वो खुद ही मैनेज भी करता है, बट मैनेजर जो होते हैं वो स्किल्ड ही होते हैं चीजों को मैनेज करने के लिए, जैसे उन्होंने MBA वगैरह किया होता है। जरूरी नहीं कि आपके एंटरप्रेन्योर के पास सेम क्वालिफिकेशन हो, है ना, आ रही बात समझ में। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, आगे लिखिए, आगे लिखिए, एंटरप्रेन्योर का फोकस किस चीज पे होता है, दे फोकसेस ऑन स्टार्टिंग एंड एक्सपैंडिंग द बिजनेस। किस चीज पे फोकस है, बिजनेस को स्टैब्लिश करना और उसको एक्सपैंड करना, ये एंटरप्रेन्योर का है। और आपके मैनेजर का क्या है, स्मूथ फंक्शन ऑफ द बिजनेस या ऑपरेशंस इन द बिजनेस, सारी चीजें स्मूथली रन करे बिजनेस में, इंप्लॉइज अपना काम टाइमली करे, ठीक है, इंप्लॉइज को सैलरी टाइम पे मिले, ठीक है, नए कुछ रूल्स और पॉलिसीज आई है फॉर इंसेंटिव एंड बोनस, वो उनको पता लगे, इंफॉर्मेशन मिले, तो एक स्मूथ ऑपरेशन चले बिजनेस में प्रॉपरली, which is related with the work and it is related with the employees as well। मतलब employees भी आराम से काम करे, एक environment provide करना, ये मैनेजर का काम है। और एंटरप्रेन्योर का काम होता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना, तो फोकस उनका एक्सपेंशन पे होता है, बिजनेस डेवलपमेंट पे होता है। इनका फोकस होता है बिजनेस रन करने पे, बिजनेस के फंक्शन पे होता है मैनेजर का। आगे बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, लिखिए, एंटरप्रेन्योर का मेन रीजन क्या होता है, मतलब वो क्या चीज है जो मोटिवेट करता है उनको कि वो एंटरप्रेन्योर बने। सो की मोटिवेशन एंटरप्रेन्योर का है अचीवमेंट, क्या है, अचीवमेंट। और मैनेजर का क्या है, पावर, पावर, ऑथोरिटी। मतलब अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनता है तो उसका मेन है कि मैं कुछ अचीव करूं, है ना, कुछ मुझे बोल सकते हैं ना, अचीवमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, ऑनलाइन क्लास, हासिल करना, उपलब्धि, 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 वेरी गुड, ठीक है। तो मैं भी भूल गई थी इसकी हिंदी वर्ड, उपलब्धि, ठीक है। अचीवमेंट वो होता है जो सब लोग अचीव ना कर पाए, याद रखिएगा, अचीवमेंट्स आर दोस थिंग्स व्हिच इज नॉट कॉमनली अचीव बाय एवरीवन। सो ये एंटरप्रेन्योर का होता है मोटिवेशन कि भाई मुझे कुछ ये अचीव करना है, मुझे ऐसा कुछ लाना है, दुनिया में कुछ ऐसा करना है, दैट इज द मोटिवेशन फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। मैनेजर का क्या होता है कि भाई मुझे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी मुझे ऑथोरिटी मिले, पावर मिले, ताकि मैं अपने फंक्शंस को प्रॉपरली रन कर पाऊं। अब ऐसे तुम सोचो कि इफ यू आर वर्किंग इन द ऑफिस एंड अल्टीमेटली आपके जैसे मैनेजर आते हैं, वैसे अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो तो फोन रख दे दो, व्हाई दिस इज हैपनिंग। उसके पास हाँ, that person is going to take the action against you if you are doing the impersonal या personal things, मतलब बोल सकते हैं ना informal and personal things in the office. If you are not doing your work and you are doing all those things,
They are going to basically take the action against you. They have power to increase your burden of work, right? They have power to provide you incentive as well. So ये पावर इसलिए क्योंकि उनको टॉप लेवल ने इतनी ऑथोरिटी दी हुई है, इतना पोजीशन है आपका कि जहां पर वो एक्शन ले सकते हैं. सो उनके लिए मोटिवेशन क्या है? की मोटिवेशन अचीवमेंट, और मैनेजर के लिए की मोटिवेशन क्या है? पावर एंड ऑथोरिटी. आगे बस समझ में एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, प्रॉफिट और वो तो लिख लिया था ना, प्रॉफिट, रेम्यूनरेशन और सैलरी. अच्छा, बहुत लोग रेम्यूनरेशन में कंफ्यूज होते हैं. रेम्यूनरेशन इज द मीनिंग ऑफ दैट व्हेन यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, लाइक यू आर वर्किंग, यू आर गेटिंग सैलरी इन रिटर्न. सो रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी ही होता है. अच्छा, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, कैजुअल भी हो सकते हैं, और अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को वो खुद डेवलप करते हैं. तुम लोग को जानकर आश्चर्य होगा, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं जो उनके एम्प्लॉइज उनका नाम लेते हैं. They're not saying sir or ma'am, they are using their name, right? So entrepreneurs are making a informal, formal and casual environment. That is totally up to him because उसकी अपनी कंपनी, अपना बिजनेस है. लेकिन मैनेजर जो होते हैं, they are always work in a formal way. ठीक है? Formally they have so many rights. आपके घर नहीं पहुंचाएंगे आपको पीटने के लिए. That is not the right of manager. Informally, personally they cannot harm you. But if you are doing anything wrong in the office or office timing, they have right to take action in the formal way according to the policies or the guidelines of the company. ठीक है? So आपके जो मैनेजर होते हैं वो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फॉर्मल वे में आपको प्रोवाइड करेंगे. लाइक अगर आपको ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है, सो दे विल गिव यू सजेशन ओवर दैट. ठीक है? सो दे आर नॉट सॉल्विंग योर पर्सनल प्रॉब्लम, बट यस, whatever problem is there in the professional life, they are going to solve it in their own way, and they are going to solve it in the formal way. So they are basically working in the formal environment, and entrepreneur can be in the formal, informal or casual environment. Clear? Any doubt in any of the point? समझ में आ गया सबको? Okay, so tell me, कुछ समझ नहीं आया? एंटरप्रेन्योर, मैनेजर. हाँ, एजुकेशन वाला भी लिख लेना कि फॉर द मैनेजर के लिए जो पर्सन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्किल्ड होना चाहिए और नॉलेजेबल होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्टीज होनी चाहिए उसकी उस फील्ड में. ठीक है? एक्सपर्टीज मैंने इसलिए बोला आपको क्योंकि देखो, मैनेजर जो है उसके जो काम होते हैं वो पूरे मैनेजमेंट फंक्शन को चलाना है, प्लानिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है. अब रिसोर्स, जो ह्यूमन रिसोर्स वाले वो स्टाफिंग का काम करते हैं. सो उनके एरिया में एक्सपर्टीज होनी चाहिए. ठीक है? हर एक का एक्सपर्टीज वाला एरिया होता है. जैसे अभी आप लोग जब पास आउट होंगे, पास करेंगे, तब आपका क्या होगा? एक्सपर्टीज कॉमर्स है ना, अकाउंट्स, आप लोग का अकाउंट्स होगा ना, एक्सपर्टीज. तो वैसे ही एक्सपर्टीज होने चाहिए वो. और एंटरप्रेन्योर्स का क्या होना चाहिए? दैट एजुकेशन इज नॉट एन एलिजिबिलिटी, बट यस, द पीपल हु आर बेसिकली वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर, दैट पर्सन नीड टू बी डायनामिक, नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस्ड. ठीक है? लेकिन एजुकेशन कोई एलिजिबिलिटी नहीं है. लेकिन अगर मैं कोई ग्रेजुएशन का पर्सन है या फिर कोई 12th पास पर्सन है, ही और शी कैन नॉट एबल टू बिकम मैनेजर. ठीक है? क्लियर हो गई बात? सारे पॉइंट क्लियर है? एनीवन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द पॉइंट? ओके, ठीक है. तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. In the next class, what we are going to discuss, let me tell you that we are going to do the economic, what is the contribution of entrepreneurship in the economic development, how they are contributing, like increasing the number of employees, ठीक है, increasing the per capita income, मतलब per person का income capability increase हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प हो रहा है, दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंस्पिरेशन है, तो दूसरे लोग जो है वो भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं. राइट? सो ये सारे व्हाट आर द बेसिकली कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. देन वी विल मूव टुवर्ड द थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक द शम्फिटर थ्योरी, वॉकर थ्योरी एंड पीटर ड्रकर थ्योरी. तो ये तीनों आपकी थ्योरीज करनी है.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में शॉम्पेटर की थ्योरी मैं कंप्लीट करा दूंगी. ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. एनीवन हैव एनी डाउट? ओके.